Very good afternoon, everyone. So, warm welcome to all of you. So, welcome back to weekly webinar cum training sessions of Rajlakshmi Solutions Private Limited. So, behalf of Rajlakshmi team, I would like to welcome to all attendees here. So, thank you so much for joining us today's session. I am Sampada, representing Rajlakshmi Solutions Private Limited. Today, we are going to talk about audit trial in Tally Prime. So, before moving ahead to the today's topic, let's take a small introduction of Rajlakshmi Solutions Private Limited. So we are into software, services, solutions, implementations, and development. First, we deal with Tally Prime. Tally Prime based accounting software. Second is SAP Business One, the business management software and the company's process. Third one is Bitrix 24. It's a CRM project and collaborations tool. So fourth one is Great HR. It's a HRMS software and payroll solutions. So now our team is available here for the live demonstrations and presentations. So Sania and Tejasri, are you here? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. So welcome both of you and thank you for joining. So over to you, Sania. Yes, ma'am. Thank you. Thank you. Good evening, all. My name is Sania Pathan, representing on behalf of Rajlakshmi Solution Private Limited. On behalf of management and entire team of Rajlakshmi Solution, I would like to welcome all the participants present here. Moving ahead, our today's topic is audit trial, edit log in Tally Prime. Next slide. What is an audit trial? An audit trial at its most basic record of financial transaction. The audit trial is, however, not simply a record. It is listened in order, step by step, and serve as proof of transactions history. Right from recording to tracking all changes that may take place. ऑडिट ट्रायल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए होता है. हाउएवर ऑडिट ट्रायल का केवल रिकॉर्ड नहीं है. ऑडिट ट्रायल रिकॉर्डिंग से लेकर सभी चेंजेस पर नजर रखता है और ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का प्रूव भी होता है. नेक्स्ट स्लाइड. Importance of audit trial. Beginning from the financial year 1st April 2022, according to software used for maintaining books of account should has an edited log feature. This applies to all the businesses that falls under the purview of Ministry of Corporate Affairs. The Ministry of Corporate Affairs has explicitly notified some important requirements of audit trial, which are listed below. Number first, create an edit log of every transaction and all changes made to the transaction. Number second, maintain the data and timestamp of every entry and changes into the books of account. Number 3, no turning of the audit trial feature. From 1st April 2022 से audit trial applicable है for every businesses which is under Ministry of Corporate Affairs. Next slide. How audit trials edit log can lead and increase companies and transparency. The records can cover all actions and involve creating, editing, or deleting records. Audit trials are used during process when there is need to verify a specific entry or transaction. The auditor can trace all transactions that were performed related to the transaction. एडिट लॉग आपको ट्रांजैक्शन में क्रिएटिंग, एडिटिंग और डिलीटिंग ओवरऑल ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड्स बताता है. ऑडिट ट्रायल हमें मेनली ऑडिट प्रोसेस के टाइम पर यूज करना है.
ऑडिटर ट्रांजैक्शन के ओवरऑल एक्शन को ट्रेस कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। Why do we need an audit trail edit log for business? For any business to protect itself against fraud or future mismanagement, there need to be a meticulous records kept of the financial and operational activities done. When a point of cons- concentration arise, the audit trials can immediately be referred to and the facts verify. ऑडिट ट्रायल हमारे बिजनेस में कोई भी फ्रॉड या मिसमैनेजमेंट से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। दैट इज एंड फ्रॉम माय साइड। ओवर टू यू तेजश्री मैम। थैंक यू सो मच। Okay, Sania. It was a nice presentation. My screen is visible? Yes. Okay, thank you. Myself Tejashri, and I'm here to represent the live webinar of audit trial. So सबसे पहले ऑडिट ट्रायल क्या है? ऑडिट ट्रायल एक अभी 1 अप्रैल 22 से एप्लीकेबल हुआ है, जिसमें आपके सारे ट्रांजैक्शंस ऑडिट प्रोसेस के टाइम वेरिफिकेशन के लिए लगते हैं। तो टैली प्राइम में एक बेस्ट आपको सर्विस प्रोवाइड की गई है, जिसमें आप सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करके उसका ट्रैकिंग भी रख सकते हो। कौन से यूज़र ने कौन सा ट्रांजैक्शन मेंटेन किया है या फिर कौन से स्टॉक्स लेजर्स क्रिएट किए हैं, ये आपको ये रिलीज में दिखाई देगा। तो टैली प्राइम में आपको एडिट लॉग का रिलीज यूज़ करना होगा, जिसमें आपके सारे ऑडिट ट्रायल के फीचर्स रहेंगे। तो सबसे पहले आपको, अगर आपका मल्टी यूज़र रहेगा तो आप यूज़र्स क्रिएट कर सकते हो, जिसके थ्रू आप आपका पूरा ट्रैकिंग रख सकते हो, कौन से यूज़र ने क्या एग्जैक्टली वर्किंग किया है। तो अगर आपको यूज़र्स क्रिएट करने होंगे तो आप अल्ट के में जाके यहाँ पे कंपनी में पहले एडमिन लेवल पे एक यूज़र क्रिएट करना है। अल्टर में यहाँ पे आपको पहले एडमिनिस्ट्रेटर का आईडी और पासवर्ड सेव करना है, और उसके बाद यहाँ पे अनेबल ऑडिट फीचर्स का ऑप्शन येस रखना है। इससे क्या होगा कि आप सारे ट्रांजैक्शंस जो भी मेंटेन करोगे वो आपको दिखेगा, एक्टिविटीज आपकी ट्रैक होगी। इसके बाद में आपको यूजर्स क्रिएट करने हैं। एक एडमिन का यूजर है जिसको आपके सारे राइट्स रहेंगे आपके टैली के, और यूजर्स को बेसिकली आपको जो राइट्स देना है वो आप दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक यूजर बना दिया है ऑलरेडी, यूजर्स करके, और मैंने उसको एक पर्टिकुलर यूजर नेम और पासवर्ड भी सेट करके दिया है। तो पहले हम एडमिन से कुछ ट्रांजैक्शंस या फिर लेजर्स मेंटेन करते हैं, और उसका आपको कैसा रिपोर्ट मिलेगा वो भी मैं आपको शो करती हूँ। तो सबसे पहले हम क्रिएट में जाएंगे। कोई भी लेजर मैं क्रिएट करती हूँ यहाँ पे एडमिन के यूजर से। जैसे कि मैंने एक XYZ प्राइवेट लिमिटेड सन्डे डेटर्स क्रिएट किया है। यहाँ पे मैंने नेम वही रखा है, स्टेट महाराष्ट्र रखा है, और कंट्री इंडिया। यहाँ पे मैं GST नंबर फिलहाल के लिए मेंटेन नहीं करती हूँ, और मैं सेव कर देती हूँ। ये मैंने एडमिन के यूजर से एक लेजर क्रिएट कर लिया है। अभी एक स्टॉक आइटम भी क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे यूनिट मैंने नंबर्स रखा है। स्पेसिफाइड डिटेल्स में HSN कोड डाल देती हूँ। और सेव कर देती हूँ। अभी यहाँ पे आपको मेन फीचर जैसे कि है, यहाँ पे जैसे आपने क्रिएट कर लिया है, अभी अल्टर जब आप करोगे तो यहाँ पे कौन से यूजर ने कौन सा लेजर क्रिएट किया है उसकी एक्टिविटी जनरेट होगी। जैसे मैंने एडमिन से लेजर क्रिएट किया है XYZ, उसको फिर से ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको कंट्रोल O करके रिलेटेड रिपोर्ट्स का ऑप्शन दिखेगा। अगर आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो एडिट लॉग का एक रिपोर्ट यहाँ पे आपको ओपन होगा। Alt+Q ये उसका शॉर्टकट की है। उसको एंटर करने के बाद
यहाँ पे आपको एक्टिविटी डेट और टाइम के साथ और यूजर नेम के साथ दिखेगी। जैसे मैंने अभी क्रिएट किया है उसको, यूजर नेम मैंने एडमिन रखा हुआ था और डेट और टाइम भी यहाँ पे मेंटेन हुआ है। अगर आपको डिटेल फॉर्मेट में उसका एडिट लॉग देखना है तो एंटर करना है, और यहाँ पे आपको वर्जन 1 और वर्जन, इसमें आपको बाइफरकेट किया गया है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन किया डाला है, यहाँ पे आपको डिटेल फॉर्मेट में दिखेगा। सेम जैसे मैंने स्टॉक आइटम भी क्रिएट किया है वो भी यहाँ पे शो करेगा। स्टॉक आइटम में जाके मैंने पेंसिल नाम का स्टॉक आइटम बनाया हुआ था, तो उसको ओपन करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल ओ करना है और एडिट लॉग में एंटर करना है। यहाँ पे आपको एक्टिविटी दिखेगी क्रिएटेड, यूजर नेम भी दिखेगा एडमिन, और डेट और टाइम भी आपको स्पेसिफाई मिलेगा करके। एंटर किया, यहाँ पे आपको डिटेल फॉर्मेट में दिखेगा कि एग्जैक्टली आपने क्या क्या एंट्री क्या क्या इंफॉर्मेशन फिल किया है। अभी मैं आपको एक पाउचर भी ट्रांजेक्शन भी मेंटेन करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने पेमेंट में एक नॉर्मल पेमेंट एंट्री पास करती हूँ XYZ की। यहाँ पे मैं 100 रुपीज एंटर करती हूँ। नरेशन में लिखती हूँ पेमेंट मेड ऑन 1 अप्रैल। और सेव कर दिया। उसके बाद में आपको अगर फिर से इसका ये एंट्री किसने पास किया है वो अगर देखना होगा तो आप डे बुक में आके यहाँ पे जो मैंने पेमेंट एंट्री किया है उस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे फिर से रिलेटेड रिपोर्ट्स का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करके आप अल्ट क्यू में एक्टिविटी देख सकते हो कि मैंने क्रिएट किया है, यूजर नेम भी एडमिन है और डेट और टाइम भी मेंटेन हुआ है। यहाँ पे मैंने क्या क्या एग्जैक्टली एंट्री किया है वो भी आपको दिखेगा। तो यहाँ से आप पूरा ट्रैकिंग रख सकते हो कि कौन से यूजर ने कौन सा पेमेंट एंट्री या फिर कुछ भी मेंटेन किया है। अभी मैं आपको यूजर के लॉगिन से कुछ चेंजेस करके बताती हूँ, तो वो कैसे शो करेंगे वो भी आपको शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैं चेंज यूजर करती हूँ। ये मैंने चेंज यूजर कर दिया। अभी मैं यूजर के हिसाब से यहाँ पे चेंजेस करती हूँ। अल्टर में जाके मैंने जो XYZ लेजर बनाया था उसमें मैं स्टेट चेंज कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे गुजरात डाल दिया। और यहाँ पे एड्रेस भी मेंटेन कर देती हूँ। मैंने सेव कर दिया। अभी जब मैं फिर से यहाँ पे अल्टर में आऊंगी और लेजर देखूंगी तो यहाँ पे मैंने जो भी चेंजेस किए हैं आपको कंट्रोल O रिलेटेड रिपोर्ट्स में फिर से एडिट लॉग में देखना है। यहाँ पे जैसे मैंने पहले क्रिएट किया था एडमिन के यूजर नेम से, और यहाँ पे अल्टर का ऑप्शन अल्टर का एक्टिविटी दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने इसमें कुछ अल्ट्रेशन किया है, यहाँ पे यूजर नेम भी दिखेगा और यहाँ पे टाइम भी दिखेगा। इस पे एंटर करना है। यहाँ पे आपको जो भी चेंजेस किए गए हैं वो रेड मार्क में दिखाई देंगे। जैसे मैंने पहले महाराष्ट्र था, एडमिन के यूजर से जो क्रिएट किया था उसमें महाराष्ट्र था स्टेट, और मैंने यहाँ पे गुजरात कर दिया है। और यहाँ पे एड्रेस कुछ भी नहीं था, मैंने एड्रेस भी फिल कर दिया है। अगर आपको बस अल्टर वैल्यूज ही देखने होंगे तो आप F12 करके यहाँ पे बस अल्टर वैल्यूज को यस करना है। आपको यहाँ पे अल्टर वैल्यूज दिखेंगे। और आपको अगर पूरा रिपोर्ट देखना है, यहाँ पे पूरा रिपोर्ट आपको शो करेगा कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। सेम मैं स्टॉक आइटम का भी आपको बता देती हूँ। यहाँ पे यूनिट्स, यहाँ पे मैं HSN कोड चेंज करती हूँ। और यहाँ पे GST रेट पे मैं 18% करती हूँ और सेव करती हूँ।
यहाँ पे अगर मैं फिर से ओपन करूँ तो रिलेटेड रिपोर्ट्स में एडिट लॉग में यहाँ पे अल्टर का ऑप्शन दिखेगा, सॉरी अल्टर का एक्टिविटी आपको दिखाई देगी। उस पर एंटर किया तो जो भी मैंने चेंजेस किए हैं वो रेड मार्क में यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो जब ऑडिट आपका होता है तो आपको क्लियरली यहाँ पे दिखाई देगा कि कौन से अल्टर्ड वैल्यूज है, एग्जैक्टली क्या अल्टर हुआ है वो आपको इमीडिएटली यहाँ पे सिंपल वे में दिख जाएगा। ये आप जो भी नया कोई क्रिएशन करते हो, लेजर या फिर ग्रुप, करेंसी, इसमें सभी इसमें ही एप्लीकेबल होता है। अभी जो वाउचर भी हमने बनाया था इसमें भी मैं थोड़े बहुत चेंजेस करती हूँ। जैसे यहाँ पे 100 अमाउंट डाली थी, मैं 120 करती हूँ और यहाँ पे नरेशन में चेंज कर देती हूँ पेमेंट मेड। और अगर इसका आपको रिपोर्ट देखना है तो फिर से वाउचर में आके रिलेटेड रिपोर्ट्स में एडिट लॉग में यहाँ पे अल्टर में बिताएगा। एंटर करने के बाद यहाँ पे जैसे मैंने अमाउंट 100 रुपीज़ थी 120 चेंज कर दिया है। यहाँ पे मैंने जो नरेशन था वो भी चेंज कर दिया था। पेमेंट मेड 1 अप्रैल था, यहाँ पे मैंने पेमेंट मेड कर दिया। तो इस तरीके से आप पूरा आपका ट्रैकिंग रख सकते हो और टैली में जो भी चेंजेस हो रहे हैं यूजर वाइज ये आप मेंटेन कर सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन। Yeah, thank you, Tejasri and Sania. So, before wind up the session, take a small recap on this topic. Tally Prime edit log features help you maintain the edit of transactions along with the date and time of each changes. You can also know the username which initiated the changes and track the deleted transactions also. So not just transactions, you can track the changes mode of accounting ledger, accounting groups, and stock item master also. You can easily track the modified transactions from the report, and you get to know the modified elements by the comparing the quickly with the various version also. So that's it. So thank you so much for joining all the attendees here. So this session will be uploaded in our YouTube channels. So be connected to our social media channels and be connected to our key account managers for any support and any requirement. So we are going to thank you so much for your joining. See you in the next webinar. Thank you.